Good afternoon, everyone. Hello, am I audible? Hello. Yes, Pawan, you are audible. Yeah, good afternoon, everybody. Good afternoon. Yeah, sir, just allow us 5 minutes. Other people are also joining. So, hardly in 5 to 10 minutes, we'll be starting the session. Okay, just allow us 5 to 6 minutes, not more than that. And thanks a lot, everyone, for joining. नमस्कार देवियों और सज्जनों। नमस्कार सर। Hello, Nirbhay, can we start the meeting? Let's start the Yeah, meeting. yeah, 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 yeah. So, I first of all, I think sir, just wait for 2 minutes no as some problem, sir. people We are can also wait for connected. 5 minutes, sir. No problem, Only sir. 2 minutes, sir. Please. No Thank you. problem. I got your point, sir. Got your
Rakesh sir, can you hear the audio? Hello, no voice coming. Hello. Hi Vivek Yes, sir, we just haven't start. yet started sir. Okay, We, I'm sorry. Oh, No problem sir, no problem. It's all fine sir. Just we, allow us we two just minutes. starting. Sir, you people can start now, sir. Okay People sir, may, Yes, may yes, join slowly. Yeah, please. Thank you, sir. no problem sir. yeah. If you want, we can just wait for 2 more minutes so that we can start with all of the other people too. Okay, sir. I actually I have put it a reminder. I have shared the reminder in groups. No problem sir. Maybe We can more start people will at join. 4:40. We can still wait for Okay, three sir. minutes so that everybody joins and we all Right, at sir. the same page. Okay. Right, sir. Thank you very Yeah. much. Thank you so much, Sanjay sir. Means a lot, sir. Hmm. Hello everyone. Uh, we will share the recording after the meeting ends. So don't. Okay, so Sanjay sir, should we start it? Sure, sir. Please. Go ahead. Yeah, so first of all, thank you to the MDWA team for letting us do the event at their Delhi conference, and the hospitality and everything was very, very great. Okay, and our क्यों today's event. एक तो Hello, एकदम खराब हो hello, रिकॉर्ड hello. Should I go ahead? या तो आज का जो अपना पूरा ये जो मीटिंग है वो मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, फर्स्ट थिंग जो हम लोग आपको दिखाएंगे संचय सीआरएम का होल ओवरव्यू, ठीक है, कि वो आपके इंडस्ट्री को कैसे बिजनेस मैनेज करने में मदद करता है। मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं उनका टीम साइज 4 से लेके 7 तक है, तो हम लोग उस तरीके से ही पूरा फ्लो दिखाएंगे जिसमें जिनका टीम साइज 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी हो, उनका पूरा का पूरा बिजनेस कैसे अच्छे से मैनेज होता है। इवन हम लोग आगे जाके सिंगल और डबल यूजर्स के लिए भी आगे कैसे हम लोग का सॉफ्टवेयर या हम लोग की टीम आपको कैसे मदद करेगी, वो भी चीज़ों को हम लोग प्रपोज़ करेंगे। ओके? सो करंटली जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन,
हम हमारे एक्टिवली 30 to 35 क्लाइंट्स हैं जो ये सॉफ्टवेयर को ऑल ओवर द कंट्री इसको यूज कर रहे हैं और बहुत हैप्पीली इसको यूज कर रहे हैं। ओके, सो निर्भय है जो सेल्स हेड है इस प्रोडक्ट का, वो पूरा का पूरा आज हम सबको ओवरव्यू दिखाएगा। इन बिटवीन आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। आई होप माई वॉइस इज क्लियर एंड लाउड। Yes, voice is clear and loud. Yeah, so over to you, Nirbhay. And if you guys have any kind of questions, you can go ahead. Okay, thanks a lot again. थैंक यू पवन सर। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं एक पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि एनजे क्या है। ऑल्दो आप में से काफी लोगों को पता होगा कि क्या है एनजे, जैसे कि हमने उस दिन में इवेंट में बताया था, लेकिन एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। ओके, सो आई विल जस्ट शेयर माय वेबसाइट। राइट, तो ये है हमारा एनजे का वेबसाइट। ओके, सो हम लोग लास्ट 25 ईयर्स से है ओके एज ए ऑर्गेनाइजेशन, और हमने लास्ट 15 ईयर्स से अलग अलग टाइप के CRMs बनाए हैं फॉर SMEs एंड MSMEs। ओके, actively we are having around 41,500 plus active users and 4,500 plus satisfied customers। ओके, और जैसा हमने बताया था कि हमारे कुछ CSR इनिशिएटिव्स भी होते हैं, जैसे स्किल एक्सपीरियंस हो गया या मोबाइल से मैदान तक हो गया। ओके, अपार्ट फ्रॉम संचय हमारे पास यहाँ पे और 5 प्रोडक्ट्स है। लाइक पहले हमारा जो कोर प्रोडक्ट होता है संगम CRM, ओके, जिससे हमने स्टार्ट किया था, और इसी प्रोडक्ट को हम मेजरली अलग अलग इंडस्ट्री के लिए उनके नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करके देते हैं। फिर हमारा आता है सिनेप्स टेलीफोनी। ये बेसिकली एक IVR कॉलिंग के लिए है। ओके, मतलब अगर आपको वॉइस ब्रॉडकास्टिंग करवाना हो, ओके, चैटबॉट वाला फैसिलिटी चाहिए हो कॉल्स पे, तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर आता है सुगम टैली ऑन क्लाउड। ओके, तो आप जो भी टैली यूज करते हो उसको भी हम क्लाउड प्रीमाइसिस पे स्टोर करने का फैसिलिटी अवेल करते हैं। फिर हमारा आता है संवाद टेली कॉलिंग ऐप। ओके, तो ये बेसिकली एक वो एप्लीकेशन है अगर आपकी टेली कॉलिंग की टीम है, ओके, जिन आप डेटा कहीं से परचेज करते हो, आपको फिर रिजल्ट चाहिए होता है कि वो लीड्स पे क्या हुआ, तो आपको ये हमारा टेलीकॉलर ऐप यूजफुल रहेगा। फिर हमारा आता है कि सारथी फील्ड ट्रैकिंग ऐप। तो आपकी जो भी फील्ड की टीम होती है, ओके, आपके सेल्स पर्सन हो गए, जिनको आपको ट्रैक करना होता है, आपको देखना होता है कि उनका लाइव लोकेशन क्या है, उनका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, वो लोग कितने बिजनेस ला रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम ये एप्लीकेशन में ट्रैक कर सकते हैं। फिर हमारा आता है संचय CRM। ओके, तो जैसा बताया मैंने कि हम लोग लास्ट 15 ईयर्स से है इंडस्ट्री में, और हमने अलग अलग इंडस्ट्री वाइज CRM बनाया है। और ये जो हमारा CRM है ना, संचय CRM, ये हमने पर्टिकुलरली MFDs के लिए बनाया है। ओके, सो हमने पहले 2019 में भी ट्राई किया था कि हम संगम CRM में ही एक अलग से कस्टमाइजेशन या पार्ट बना के उसे वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री को प्रोवाइड करें, लेकिन उस टाइम पे हम इतने सक्सेसफुल रहे नहीं। तो फिर 2019 से लेके 2025 तक हमने पूरी रिसर्च की। ओके, हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे हमने बात की, हमारे जो यहाँ पे लोकल MFDs है उनके साथ हमने बात की, उनके पेन समझे। ओके, और फिर लास्ट में हमने संचय बनाया, और हमने लास्ट फरवरी में, मतलब 2025 के फरवरी में इसे लॉन्च किया, और अब तक हमारे पास अराउंड 35 कस्टमर ऑन बोर्ड भी हो चुके हैं, जो फुल, मतलब कुछ लोगों का फुल फ्लेज यूटिलाइजेशन भी चालू हो गया है, और कुछ लोग ऐसे जिनका ऑन बोर्डिंग स्टेज चालू है अभी। जैसे कि एनजे वेल्थ। राइट, ओके, अभी जैसे कि मैं बताऊंगा कि संचय क्या है और संचय क्या नहीं है। ओके, तो आप संचय एक CRM है, और आप कोई ना कोई PMS प्लेटफॉर्म यूज करते ही होंगे, जैसे इन्वेस्टवेल हो गया या रेडविजन हो गया, जहां पे आप पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शन मैनेज करते हैं या कस्टमर के रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स आप मैनेज करते हो। तो वो चीजें हम CRM में, मतलब वो चीजें CRM रिप्लेस नहीं करेगा। ओके, सो हमने पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने नहीं आए, हम उनको कॉम्प्लीमेंट करने आए हैं। ओके, और कॉम्प्लीमेंट कौन से मैनर में हम करेंगे वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके, तो ये हमारे 5 टॉप की फीचर्स है संचय के। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है कि सेंट्रलाइज क्लाइंट डेटाबेस। सो आपके पास कस्टमर रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपने अलग अलग पोर्टल्स पे, फाइल्स पे, ओके, कहीं ना कहीं आपने स्टोर की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संचय में वो सारा डेटा हम एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने बताया था कि हम या तो API इंटीग्रेशन के थ्रू भी वो डेटा ला सकते हैं, या हम फाइल्स को एक्सेल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं सिस्टम में। ओके,
और अगर मुझे कस्टमर रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट मैनेज करना है, मुझे उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गए या कोई फाइल्स हो गई जो स्टोर करनी है, तो वो भी हम सीआरएम में स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडली, ये चीजें कहीं से भी एक्सेसिबल है, मतलब आपको कहीं भी, आप ऑन फील्ड हो, आप कहीं बाहर गए हो, आपको कस्टमर का फोन आया है, ओके, उसको कोई पर्टिकुलर डॉक आपको शेयर करना हो, तो वी कैन जस्ट ओपन मोबाइल एप्लीकेशन। आपने मोबाइल एप्लीकेशन ओपन किया, कस्टमर का नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, ओके, उनका पान कार्ड डाला, उसके बेसिस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, वहीं से आप डाउनलोड करके सीधा व्हाट्सएप भी कर सकते हो कस्टमर को। ओके, सेकंड हमारा आता है कि रिजॉल्व क्लाइंट क्वेरीज। तो आपको मल्टीपल क्लाइंट क्वेरीज आती होगी, ओके, कुछ फाइनेंशियल क्वेरीज, नॉन फाइनेंशियल क्वेरीज, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से, आपके नए कस्टमर से, तो वो सारी क्वेरीज भी हम सीआरएम में लाके उसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब मैं इसको ईमेल के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ओके, सो इन केस अगर मेरा कस्टमर मुझे ईमेल पे कोई क्वेरी शेयर कर रहा है, तो उसका एक ऑटोमेटिक टास्क क्रिएट होगा और वो आगे मेरी टीम में असाइन हो जाएगा। मतलब मेरा कोई आरएम है, सब आरएम है, जिसे भी मुझे असाइन करना हो मैं उसे असाइन करवा सकता हूँ। सेम चीज हम व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, मतलब मेरा कस्टमर आ रहा है, मेरे व्हाट्सएप चैटबॉट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वहां से वो कोई क्वेरी रजिस्टर कर रहा है, तो वो डायरेक्ट मेरी सीआरएम में आगे उसका एक टास्क क्रिएट हो जाएगा और जिसे मुझे अलोकेट करना है उसे मैं अलोकेट करवा दूंगा। ओके, फिर हम वो पर्टिकुलर क्वेरी का पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि वो क्वेरी पहले तो किसने रजिस्टर की, ओके, फिर उस पे किसने एक्शंस लिए, ओके, ये सारी चीजें। और अगर मुझे रिपोर्ट चाहिए वो क्वेरी रिलेटेड, ओके, या वो टास्क रिलेटेड, तो उसके रिपोर्ट्स भी हम सीआरएम के थ्रू बना सकते हैं। फिर हमारा आता है कि बैक ऑफिस, मैनेज बैक ऑफिस टास्क या इंटरनल टीम। ओके, आप काफी बार आपको कस्टमर के कॉल्स आते होंगे, तो आप आगे वो टीम को पास ऑन करते हो, लेकिन आपके पास कोई ट्रैक नहीं रहता, तो आगे आप भी भूल जाते हो और टीम भी भूल जाती है। ओके, तो वो टास्क भी हम सिस्टम से देख सकते हैं कि मतलब वो टास्क का क्या हुआ आगे, ओके, उस वो टास्क पे किसी ने काम किया कि नहीं। सेम चीज हम इंटरनल टीम के लिए भी कर सकते हैं। फिर आता है ट्रैक इंक्वायरीज एंड फॉलोअप्स। तो आपको अलग अलग सोर्सेज से लीड्स आती है, राइट, जैसे व्हाट्सएप हो गया, मतलब आपने कहीं पे कैंपेनिंग किया तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, ओके, या आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे कस्टमर आ रहा है, ब्राउज कर रहा है, वो फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो वो सारा डेटा हम सीआरएम में ला सकते हैं। या जो आपके इंडस्ट्री में सबसे कॉमन चीज है, रेफरल, तो वो रेफरल से भी जो लीड्स आती है उसको हम सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। ओके, मतलब पूरा लीड का जो लाइफ साइकिल होता है ना, वो हम सीआरएम में मैनेज कर सकते हैं कि पहले तो उसका सोर्स क्या था, कहाँ से वो लीड आई, ओके, फिर कौन से प्रोडक्ट के लिए आई, ओके, आगे वो लीड मैंने किसको असाइन की, उस पर उसने कितना काम किया, ओके, कितने फॉलोअप्स किए, आगे वो लीड जो है वो कन्वर्ट हुई कि नहीं बिजनेस में, ओके, कन्वर्ट हुई तो उससे कितना बिजनेस है, निर्भय, डेड। मैं यहाँ पे एक, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब जब भी आपकी कोई लीड आ रही है, चाहे वो रेफरल से, अपनी नेटवर्किंग इवेंट से, तो दो चीजें होती हैं। या वो ईमेल मांगता है, तो मोबाइल ऐप से वन क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन सिलेक्ट अ टेम्पलेट एंड सेंड द ईमेल टू द रेलेवेंट पर्सन, ठीक है। तो आपको ईमेल बार बार लिखने का जो टाइम एडिशनल जाता है वो नहीं जाएगा। दूसरा, अगर आपकी टीम है और आपकी टीम आपके बिहाफ पे मीटिंग पे जा रही है, आपको ये मॉनिटर करना है कि टीम मीटिंग में गई कि नहीं गई, कितने बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, कितने बजे मीटिंग एंड हुई, और मीटिंग का रिजल्ट क्या आया। तो वो भी मोबाइल से आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। कंटिन्यू निर्भय प्लीज। परफेक्ट, हाँ, तो जैसा किरत सर ने बताया कि हम मोबाइल से भी सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि स्ट्रीमलाइन पोर्टफोलियो रिव्यू। ओके, तो आपके इंडस्ट्री में मैंने एक नीड देखी कि काफी टाइम ये होता है कि आप कस्टमर के साथ रिव्यू मीटिंग्स नहीं करते हो, तो वो कस्टमर हमें छोड़ के चला जाता है। ओके, तो वो पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमने ये फीचर स्पेशली बनाया है। ओके, तो जिससे कैसा होता है कि लेट सपोज कि मैंने कैटेगराइजेशन किया पहले, तो कि मेरे सिस्टम में मेरे ये 50 एचएनआई क्लाइंट्स है जिनको मुझे हर महीने मिलना है। ओके, तो मैंने वो 50 क्लाइंट्स का कैटेगराइजेशन किया, फिर मैंने उनके ऊपर रिव्यू मीटिंग प्लान कर दी कि मुझे ये क्लाइंट्स को हर महीने में एक बार मिलना है। ओके, और मैंने सिस्टम को एक बार वो अपडेट कर दिया। फर्दर मेरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक वो मीटिंग्स क्रिएट करता रहेगा और आगे मुझे उसके ऊपर नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। ओके, कि पहले तो वो प्री शेड्यूल कब है, उसका मीटिंग मुझे आ निर्भय भाई, जाएगा। निर्भय, एक फीडबैक आया है कि थोड़ा सा स्लो जाएं, ठीक है। मे ओके, बी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हो रहा है। तो इसमें जो पोर्टफोलियो रिव्यू है ना, इसमें
जो टास्क है हमारी अलग अलग टाइप की है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट की अलग टास्क है आप लोगों की। ऑपरेशंस की अलग, मार्केटिंग की अलग, सेल्स की अलग, फाइनेंस अलग, नॉन फाइनेंस अलग। नॉन फाइनेंस में एग्जांपल हो गया जैसे नॉमिनी चेंज कराना है, या बैंक चेंज कराना है, या कुछ और जिसका कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, और कुछ फाइनेंशियल चेंजेस होते हैं। तो ये जो टास्क हैं आपकी, ये रेगुलर बेसिस पे आती जाती रहती हैं। कस्टमर कॉल करता है या ईमेल करता है तो आपको बेसिकली वो टास्क मैनेज करनी होगी। बट एक टास्क जो पोर्टफोलियो रिव्यू वाली होती है, वो रेकरिंग बेसिस पे होती है। तो वहां पर हमने एक ऑप्शन दिया है रेकरिंग का, कि एक बारी क्लिक करने पर हर महीने एक टास्क आपकी रेकरिंग बन जाएगी, या हर क्वार्टर, या हर साल। कोई ऐसे ऐसे काम आपको याद आएंगे कि साल में एक बार ये तो करना ही है, तो अगले साल याद है, अगले साल फिर भूल गए। तो आपकी टास्क आपके हाथ में है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या चीज कब मैनेज होनी है, और आपने क्या टास्क किसको असाइन करनी है, ठीक है। तो अगर आप देखो, किसी ने कहा था, शायद मेरे कस्टमर ने, अगर आप अपने कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे ना, तो कोई और दे देगा। बाकी आप सब लोग समझदार हो। इट इज अ शिफ्ट ऑफ माइंडसेट। आज हम बोल सकते हैं बड़े अच्छे से, मैंने मैंने इवेंट में भी कई लोगों से सुना कि कुछ लोग बोल रहे थे, अरे मेरा कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, मेरा कस्टमर मेरा है। ये सब बड़ी सिंपल सी बात है। इफ somebody gives you better service, somebody talks to you in a better language, obviously you will love the other person, you will love the other approach। तो वो दूसरे के साथ निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा पीछे। और ऐसा हुआ होगा, आई एम श्योर, कईयों के साथ हुआ होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बना। निर्भय प्लीज कंटिन्यू। परफेक्ट। तो जैसा हरकिरत सर ने बताया कि वो रिव्यू मीटिंग जो है वो हम सीआरएम के थ्रू प्लान कर सकते हैं। ओके, फिर उसके ऊपर जो भी सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हम कस्टमर को मिलने गए, उसने मुझे बताया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन अभी नहीं करना, मुझे 3 महीने बाद करना है। तो उस सिचुएशन में हमने एक लीड बना के फिर उसकी फॉलोअप डेट चेंज करके आगे रख दी। तो उसके बाद सिस्टम जो है वो 3 महीने बाद मुझे नोटिफाई करेगा, और उसके कमेंट्स में मैंने ऐड किया होगा कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बात करना है, तो फर्दर मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। या सेकेंडली, किसी कस्टमर ने मुझे बताया कि मुझे मेरे बैंक में चेंजेस चाहिए, या कोई भी चीज हो सकती है, तो उसका भी हम पर्टिकुलर टास्क बना के वो उसको असाइन कर सकते हैं। ओके, हाँ, ये सर, हम अभी लाइव डेमो के तरफ ही जा रहे हैं। ओके, राइट। हाँ, तो ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, ये मेरा एक ओपीआर डैशबोर्ड है। ओके, अभी के लिए ये मेरा एक इंडिविजुअल ओपीआर डैशबोर्ड है, जो कि मुझे बताएगा कि एज एन इंडिविजुअल, ओके, मुझे क्या क्या चीजें मैनेज करनी है। मतलब मुझे कोई टास्क कंप्लीट करना है, मुझे किसी कस्टमर के साथ मीटिंग कंप्लीट करनी है, ओके, या मुझे किसी लीड पे आज के दिन में फॉलो अप करनी है। तो वो सारी जो चीजें है ना, वो मेरा डैशबोर्ड मुझे बताएगा। और मेरा जो डैशबोर्ड है ना, वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है: ओपन, पीरियोडिक और रिजल्ट। ओके, तो ये ओपीआर जो है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको मॉड्यूल वाइज समझा देता हूँ, तो आपको ओपीआर का बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके, तो पहले हमारे पास यहाँ पे फैमिली का मॉड्यूल आता है, जो कि बेसिकली मास्टर फाइल होता है रिलेटेड टू कस्टमर। मतलब कस्टमर के रिलेटेड जो मुझे 360 डिग्री व्यू चाहिए होता है, या सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो जो है वो हमारे फैमिली ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल में स्टोर होगी। ओके, तो ये डेटा या तो हम मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो हम आपके पीएमएस सॉफ्टवेयर से भी सीआरएम में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक फॉर्म है जो कि हमने क्रिएट किया है, इन केस अगर हम मैनुअल डेटा फीड करते हैं। तो ये हो गया कि पहले फैमिली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, सेकेंडली उनका कोई यूनिक फैमिली कोड अगर मैंने मेरे किसी प्लेटफॉर्म पे डिफाइन किया है, तो वो डेटा हम, जैसा मैंने बताया, कि हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। ओके, फिर उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ओके, फिर उनका मेरा कौन सा आरएम जो है जो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ओके, ये पर्टिकुलर कस्टमर किसको असाइंड है। फर्दर ऑन, अगर मैंने कैटेगराइजेशन किया है, ओके, कि मेरे कितने एचएनआई वाले हैं, कितने अपर मिडल वाले हैं,
तो वो कैटेगराइजेशन भी हम यहाँ पे ला सकते हैं, या काफी लोग गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसे भी कस्टमर्स को कैटेगराइज करते हैं। तो कैटेगराइजेशन है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, फिर मैं जो रिव्यू मीटिंग्स की बात कर रहा था, ओके, तो वो रिव्यू मीटिंग्स हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि मुझे वो रिव्यू मीटिंग्स कौन से बेसिस पे करनी है। जैसे कस्टमर के साथ मुझे मंथली बेसिस पे करनी है, क्वार्टरली बेसिस पे करनी है, हाफ ईयरली बेसिस पे। अभी ये मेरा एक HNI कस्टमर है तो मैं इसके साथ मंथली बेसिस पे करूंगा। मैंने यहाँ पे मंथली सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर मुझे जो डेट पे पहली मीटिंग शेड्यूल करनी है, ओके, लेट्स सपोज कि मुझे ये 16 को करनी है, तो मैंने 16 की जो है डेट से सिलेक्ट कर ली। तो वो फिर उसके बेसिस पे जो है वो एक मीटिंग मेरे लिए शेड्यूल कर देगा। ओके, जो भी मीटिंग्स हमारे साथ शेड्यूल हुई होंगी, ओके, उसका डेटा मुझे यहाँ पे दिखाएगा, ये मीटिंग्स वाले सेक्शन में। और जो मीटिंग्स हमारी कंप्लीटेड हो चुकी है वो हमें कंप्लीटेड सेक्शंस में दिखाएगा। और अगर मुझे ये मीटिंग्स के रिपोर्ट चाहिए कि मैंने ओवरऑल पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में कितने कस्टमर्स के साथ कितनी मीटिंग्स की है, या कितने मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको मैंने अभी तक एक भी बार टच नहीं किया है, मैंने कोऑर्डिनेट नहीं किया है, तो वो रिपोर्ट भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। ओके, जैसा मैं बता रहा था कि अगर मैं ऑन साइट मीटिंग करने जा रहा हूँ तो वो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन उसका लोकेशन भी कैप्चर करेगा। ओके, हमारे पास एक चेक इन चेकआउट का फीचर रहता है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि मैंने मीटिंग कहाँ से स्टार्ट की। ओके, कहाँ से स्टार्ट की, कहाँ पे एंड की, उसका ड्यूरेशन कितना था। ओके, हमारी जो भी मीटिंग्स की नोट्स है वो हम यहाँ पे कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। ओके, और 1 बाय 1 मुझे जब भी देखना हो मैं वो कमेंट्स भी पढ़ सकता हूँ। और डायरी में जो नोट्स लिखे हुए हैं उसका फोटो खींच के मोबाइल से डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हाँ, यहाँ पे हमारे पास ये अटैचमेंट का ऑप्शन है। तो जैसा सर ने बताया कि अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे शेयर हुए, तो उसका भी मैं मोबाइल एप्लीकेशन से इजीली फोटो खींच करके यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। ओके, और फिर अगर मुझे इसको प्रीव्यू करना है मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ, डाउनलोड करना है मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमारी मीटिंग्स पे बातें थी। और मीटिंग्स पे जैसा मैंने बताया था कि आगे अगर लीड आई तो मैं इजीली मोबाइल एप्लीकेशन से एक लीड भी क्रिएट करके जिस भी आरएम को असाइन करने में असाइन कर सकता हूँ। सेम गोज विथ टास्क। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 सेक्शन है कि मैंने मेरी टीम ने या मैंने कस्टमर को कितनी बार कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया है। ओके, काफी बार हमारे कस्टमर्स हमें बताते हैं कि आपका टीम मेंबर तो मुझे कनेक्ट ही नहीं करता, आपका आरएम तो मुझे कनेक्ट ही नहीं करता, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ओके, तो उस सिनेरियो में हम चेक कर सकते हैं कि मेरा आरएम सच्ची में कनेक्ट नहीं कर रहा है या कस्टमर के साइड से कोई फॉल्ट है। ओके, तो मुझे उसका भी डेटा मिल जाएगा कि हमारा कॉल पे कितनी बार कम्युनिकेशन हुआ। ओके, अगर कॉल पे कम्युनिकेशन हुआ तो उसमें क्या वो कॉल इनिशिएट किसके एंड से हुआ था, कस्टमर के एंड से कि आरएम के एंड से, मतलब वो इनकमिंग था, आउटगोइंग था, वो आंसर था कि आंसर नहीं था। लेट मी ऐड। सो फैमिली लेवल पर एक फैमिली में मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति फैमिली के अंदर मॉनिटर होंगे। आपकी यहाँ पर जो कॉल डिटेल्स हैं वो चारों लोगों के अलग अलग मोबाइल नंबर की रिकॉर्ड्स यहाँ पे नजर आएंगे। फैमिली से क्लाइंट लेवल पे भी आप जा सकते हैं। और अभी जो एक सवाल पूछा था कमेंट में कि भाई क्या केवाईसी ऐड कर सकते हैं? यस, केवाईसी हम अटैच कर सकते हैं। क्या हम केवाईसी वेरीफाई सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट लिंक्ड with the Aadhaar or PAN verification. Technology wise, managing the calls is possible only with Android phones right now, not with iOS phones, because Apple disallow करता है अपना कोई भी इंटीग्रेशन जिससे कि हम कॉल रिकॉर्ड पुल अप कर लें। तो कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी, कॉल का सिर्फ डिटेल, किसने कॉल किया, किसको कॉल किया, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, कितनी देर कॉल चली, इनकमिंग कॉल था या आउटगोइंग कॉल था, उस लेवल तक आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलेगी। नाउ टू ऐड टू एक और जो क्वेश्चन आया था उसका जवाब दूं तो देखो, एक होता है आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए हम इसके बाद मे बी ही विल निर्भय विल गिव अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द व्हाट्सएप स्टफ इज। तो now from the investor side, no,
there is no application that we have currently which you can give to the investor के investor login करके देख पाए, वो नहीं है, because we are not a portfolio app. वो फीचर पोर्टफोलियो डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स के अंदर होता है. आप यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और कर सकते हैं, वो है रिस्क एनालिसिस का रिजल्ट मॉनिटर करना. जैसे कि कंजर्वेटिव रिस्क है, मतलब बंदा जो आपसे डील कर रहा है वो कंजर्वेटिव है या मॉडरेट है या एग्रेसिव है. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन मैनेज एट द क्लाइंट लेवल. और मजा तब आएगा जब ये आफ्टर निर्भय भाई फिनिशेस दिस, आपको फिल्टर करना सिखाएंगे हम कि कैसे बहुत इजीली फिल्टर करके मल्टीपल लोगों को इकट्ठा ईमेल, इकट्ठा व्हाट्सएप कैसे भेजा जा सकता. निर्भय, यू प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर. सॉरी टू इंटरवीन. नो वरीज, थैंक यू सर. हाँ, फिर जैसा मैं आगे बता रहा था कि ये तो कॉल्स वाला हो गया. सेम चीज हम ये भी देख सकते हैं कि आइदर मेरी टीम ने उनको ईमेल पे कितने बार कनेक्ट किया है या व्हाट्सएप पे कितने बार कनेक्ट किया है. ओके, तो ये डेटा के लिए अगर मेरे सिस्टम से ईमेल या व्हाट्सएप जा रहे हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अटैच हो जाएंगे. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप लेवल पे भी एक अटैचमेंट का सेक्शन है. ओके, अगर मुझे देखना हो कि क्या क्या अटैचमेंट्स मैंने स्टोर किए या मुझे कोई अटैचमेंट स्टोर भी करने हो, जैसे आप पूछ रहे थे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं. ओके, उसका क्या टाइप रहेगा, सिंपली मैं आपको एक अटैचमेंट करके बता देता हूँ. तो पहले तो हम डॉक्यूमेंट का जो भी नाम है वो दे देंगे, फिर डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड टाइप्स है, अगर आपको इसमें कुछ एडिशंस चाहिए तो हम आपके लिए कन्फिगर कर सकते हैं. ओके, जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना हो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करके सेव करूंगा, तो वो ऑटोमेटिक मेरे क्लाइंट के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा. ओके, फर्दर ये तो एक हम जो है ग्रुप लेवल पे इंफॉर्मेशन देख रहे थे. अभी अगर मुझे किसी के इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देखनी हो, जैसे ये पारेख एंड फैमिली में हमें यहाँ पे बता रहे कि हमारे पास 2 क्लाइंट्स हैं. ओके, चैतन्य पारेख सर और लिमेश पारेख सर. अभी मुझे लिमेश पारेख सर का एक इंडिविजुअल प्रोफाइल देखना हो. ओके, तो यहाँ पे मुझे एक इंडिविजुअल प्रोफाइल देखने मिल रहा है लिमेश पारेख सर का, जो कि मुझे बता रहा है पहले तो उनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे इनका केवाईसी हुआ है कि नहीं. अगर हमने यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल मैनेज किया है, मतलब कैटेगरी अपडेट की है, तो वो हमें यहाँ पे दिखेगा. ओके, फर्दर ऑन उनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर मैंने यहाँ पे स्टोर की, जैसे बर्थ डेट हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, उनकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. ओके, तो अभी यहाँ पे अगर मैं सिस्टम में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ, जैसे उनका इंश्योरेंस है कि नहीं, म्यूचुअल फंड है कि नहीं, तो इसके बेसिस पे मुझे एक क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग का फाइल जनरेट होगा. ओके, जो कि मुझे बताएगा कि मेरे सिस्टम में मेरे कितने कस्टमर्स है. ओके, मेरे पास अगर लेट सपोज 100 कस्टमर का बेस है, तो उसमें से मेरे ऐसे कितने कस्टमर्स है जिन्होंने मेरे थ्रू लाइफ इंश्योरेंस करवाया है और कितनों ने नहीं करवाया. अगर ऐसा है कि 30 जन ने नहीं करवाया, तो वो पर्टिकुलर 30 जन को हम टारगेट करके उनके ऊपर उनके ऊपर हम लोग कैंपेन कर सकते हैं. ओके, मतलब आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करना हो या ईमेल मार्केटिंग करना हो, तो वो चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, जो इन्फॉर्मेशन हमने ग्रुप पे देखी, कांटेक्ट की, वो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सकते हैं. ओके, आगे वापस हमारे पास यहाँ पे अटैचमेंट का भी एक ऑप्शन तो है ही. फिर ये मेरे पास एक प्रोडक्ट एएमसी का सेक्शन है, मतलब कस्टमर ने मेरे थ्रू कौन सी SIP करवाई है. ओके, या कौन सी पॉलिसीज परचेज की है. ओके, वो पूरा डेटा मुझे यहाँ पे दिखेगा. ओके, कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट है. ओके, क्या नाम है उसका SIP डेट क्या है, अमाउंट क्या है. ओके, उसका फोलियो नंबर क्या है. ओके, तो ये जो भी डिटेल्स हमने सिस्टम में स्टोर किए वो मुझे यहाँ पे बताएगी. मतलब ये मुझे बता रहा है कि लिमेश पारेख सर ने हमारे थ्रू कौन सी पॉलिसीज या SIP क्या क्या चीजें करवाई है. उसके बाद फर्दर हमारे और अगर इस पे हमें कुछ ऑटोमेशन भी करने हो, ओके, ये डेटा पे के जैसे ये पर्टिकुलर कस्टमर का SIP का जो डेट है वो 2 तारीख का है. अभी मुझे ऐसा करना है कि हर महीने की फर्स्ट को उसको एक रिमाइंडर चला जाए व्हाट्सएप के थ्रू. ओके, तो वो रिमाइंडर वाला
वो रिमाइंडर वाला ऑटोमेशन भी हम लगा सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप के थ्रू जो है कस्टमर को रिमाइंडर भेज दे। यहाँ पे दीपिन सर ने पूछा है कि द डेटा विल फेच फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और वी यूज और वी हैव टू मैनुअली एंटर द सेम। निर्भय, सॉरी टू कट यू ऑफ एवरीवन, अगर एक बार अपन फुल फ्लेज डेमो देख ले उसके बाद है ना अपन एक Q&A भी रखेंगे जिसमें आप अपना जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, तो ये बेटर होगा और अपना टाइम भी ज्यादा उसमें जाएगा नहीं। 1-to-1 डिस्कशन करेंगे तो आप भी सवाल का जवाब और अगर आफ्टर क्वेश्चंस कुछ हो तो आप पूछ पाएंगे। तो इट्स बेटर कि हम लोग एक फ्लो में डेमो देख ले पूरा का पूरा, उसके बाद पूरा का पूरा टोटल Q&A ही ले ले एक साथ। ओके, इज इट गुड टू गो? परफेक्ट। ओके परफेक्ट पवन सर। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था कि मुझे ऑटोमेशंस भेजने हो, ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स, तो वो भी मैं वर्कफ्लो के थ्रू भेज सकता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास यहाँ पे लीड्स का सेक्शन है। ओके, मतलब मुझे देखना हो कि आज तक लिमेश सर ने मुझे कितने कितने प्रोडक्ट्स के लिए अप्रोच किया है। ओके, तो उसका फुल फ्लेज डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। ओके, उस टाइम पे कौन से मेरे आरएम ने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया था। ओके, अभी अगर मुझे एक नया लीड बनाना हो, आई कैन मैनुअली आल्सो क्रिएट फ्रॉम हियर, या अगर जैसा मैंने बताया था कि अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैंपेन्स रन कर रहे हो, ओके, वहां से अगर कस्टमर फॉर्म फिलअप कर रहा है तो वो डेटा हम डायरेक्टली सीआरएम में ला सकते हैं लीड्स के लिए। या आपकी वेबसाइट है, वहां पे कोई कस्टमर आके फॉर्म फिलअप कर रहा हो तो वो डेटा हम डायरेक्ट सीआरएम में ला सकते हैं। या हम व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, मतलब आपका कस्टमर आके व्हाट्सएप चैटबॉट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, डिटेल्स फिल कर रहा है, तो वो डायरेक्ट डिटेल्स जो है वो सीआरएम में आ जाएगी। वो कैसे, वो भी मैं चैटबॉट वाला आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी यहाँ पे हमारे पास पहला तो एक फॉर्म है जिसमें पहला हमारे पास फील्ड है कि इसका लीड टाइप क्या है। ओके, मतलब ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है कि न्यू बिजनेस है, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस मतलब मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर को कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है, या न्यू बिजनेस मतलब कोई वो कंप्लीटली न्यू बिजनेस है हमारे लिए। ओके, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वो ऑटोमेटिक नेम बेसिक डिटेल्स कैच कर लेगा, नहीं तो मुझे वो मैनुअली अपडेट करनी होगी। ओके, फिर कौन से प्रोडक्ट के लिए वो इंटरेस्टेड है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या XYZ। म्यूचुअल फंड पे हम क्लिक करते हैं तो उसके बेसिस पे जो है वो सब प्रोडक्ट कैटेगरी मुझे ओपन करके देगा, SIP लमसम। ओके, फिर उसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, अभी के लिए वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है हमारे पास। ओके, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उनके किसी में करंट इन्वेस्टमेंट है क्या। ओके, तो ये चीज हमें कहाँ हेल्पफुल करेगी कि मतलब अगर मैंने करंट इन्वेस्टमेंट डाला तो उससे मुझे क्या फायदा। ओके, पर लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस सिलेक्ट कर लिया तो वो फिर मुझे आगे बताएगा कि ओके ये कस्टमर ने ऑलरेडी कहीं पे लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, तो मैं इन फ्यूचर उसको पूछ सकता हूँ कि सर अगर आपने कहीं और लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, हम भी लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस का भी उसको पिच कर सकता हूँ। फर्दर ऑन के ये पर्टिकुलर लीड का सोर्स क्या है, लाइक सोशल मीडिया, वेबसाइट, व्हाट्सएप या रेफरल। तो अगर मैं रेफरल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये भी ऑप्शन मिलता है कि किसने रेफर किया है। ओके, मेरे कौन से यूजर ने, मेरे फैमिली मेंबर ने, किसने मुझे ये रेफरल दिया है, वो भी मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। ओके, और ये मेरे सिस्टम में फिर मुझे इसके बेसिस पे रिपोर्ट चाहिए, अगर मैं कभी कुछ गिफ्ट बेचता हूँ कस्टमर्स को, मेरे मेंबर्स को, और उसके टाइम पे अगर मुझे रिपोर्टिंग चाहिए कि कौन मुझे ज्यादा रेफरल्स दे रहा है, तो वो रिपोर्टिंग भी हम इजीली सिस्टम के थ्रू देख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे कमेंट्स हिस्ट्री का सेक्शन है कि मतलब जो भी मेरी बातचीत हुई कस्टमर के साथ वो मैं यहाँ पे नोट करके रख सकता हूँ। काफी टाइम मुझे कस्टमर बोलते हैं, मैं खुद कॉल करता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि आप मुझे 3 महीने बाद कनेक्ट कीजिए, 4 महीने बाद कनेक्ट कीजिए। तो उस सिनेरियो में मेरा जो भी लास्ट बात हुआ था वो मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकता हूँ, तो मुझे वो फिर आगे याद रहेगा कि मैंने प्रीवियसली कस्टमर के साथ क्या बात किया था। या मेरे एब्सेंस में अगर मेरा कोई टीम मेंबर भी बात कर रहा है, ओके, तो वो टीम मेंबर को भी आइडिया रहेगा कि प्रीवियसली हमारी बात क्या हुई थी और उनको आगे कन्वर्सेशन कहाँ पे लेके जाना है। ओके, फिर ये एक एड्रेस का सेक्शन है जिसमें कि मैं जो भी अगर एड्रेस सिटी डालना हो लीड का तो वो मैं डाल सकता हूँ। ओके, तो ये एक बेसिक लीड फॉर्म था। अगर मैंने जैसा स्टार्टिंग में भी बताया था, इसमें अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए, ओके, मॉड्यूल्स में या फील्ड्स में, तो वो हम करके आपको प्रोवाइड करके देंगे आपके हिसाब से। फर्दर ऑन हमारे फिर उसके बाद आता है टास्क का सेक्शन। ओके, अभी टास्क का जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि हमारे पास वेराइटीज ऑफ टास्क होती है, मतलब फाइनेंशियल टास्क हो गए, ओके, या नॉन फाइनेंशियल टास्क हो गए। तो वो सारे टास्क भी जो रहेंगे, हमने प्रीवियसली कस्टमर रिलेटेड जो भी काम किया होगा वो सारे टास्क हमें यहाँ पे दिखाएगा। ओके, उसका टाइप क्या है, उसका प्रायोरिटी हो गया, टास्क सोर्स हो गया,
कौन से आरएम के रिलेटेड ये टास्क था, अगर उस पर कुछ हमने कमेंट्स ऐड किए होंगे तो वो कमेंट्स भी हमें बताएगा। ओके, फर्दर ऑन यहाँ पे हम एक मैनुअल टास्क क्रिएट करते हैं। ओके, मुझे अगर कस्टमर का कॉल आया तो मैं एक मैनुअल टास्क मेरे मोबाइल एप्लीकेशन से भी क्रिएट करके आगे मेरे एसआरएम को फॉरवर्ड कर सकता हूँ, या जैसा मैंने बताया था कि मैं इसको ईमेल के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ एक तो। ओके, जैसे एग्जांपल दूं तो हमारा एक ईमेल एड्रेस है service@njworld.com। तो अगर मेरे किसी भी कस्टमर को क्वेरी हो, कुछ कंसर्न हो, तो वो मुझे उसके ऊपर ईमेल करेगा, तो उसका एक ऑटोमेटिक टास्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा सिस्टम में, और जो भी आरएम मैंने डिफाइन किया होगा, ओके, जैसे मेरा इंश्योरेंस का सेगमेंट है वो निर्भय देखता है तो वो ऑटोमेटिक निर्भय को टास्क असाइन हो जाएगा। म्यूचुअल फंड का है वो पवन देखते हैं तो वो पवन को असाइन हो जाएगा। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। फिर मेरे चैटबॉट के थ्रू भी हम जो है टास्क सिस्टम में ला सकते हैं। तो अभी के लिए मैनुअल अगर मैं टास्क क्रिएट कर रहा हूँ तो पहले तो मैं इसका सब्जेक्ट दे दूंगा, टास्क किस चीज के रिलेटेड है। ओके, फर्दर ऑन उसका टास्क टाइप क्या है, तो हम जो भी टास्क टाइप सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे वो टास्क कैटेगरी ओपन करेगा। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप डिफाइन किए हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, बैंकिंग या इंटरनल। मैं फाइनेंशियल करता हूँ तो मुझे उसके हिसाब से कैटेगरी ओपन करेगा कि एसआईपी फेल्ड है, एसटीपी है, स्विच है। ओके, अगर मैं नॉन फाइनेंशियल करता हूँ तो वो नॉन फाइनेंशियल के हिसाब से बताएगा मुझे कि उसका टास्क कैटेगरी क्या है। ओके, फर्दर ऑन उसका टास्क उसका स्टेटस क्या है, मतलब हमने यहाँ पे 3 स्टेटस दिए हैं कि वो ओपन कैटेगरी, ओपन कब होता है कि मैंने टास्क क्रिएट किया और आगे किसी को असाइन किया तो वो ओपन स्टेज में होगा। फर्दर जब मेरा यूजर उसके ऊपर कुछ काम करेगा तो वो उसको इन प्रोसेस अपडेट कर देगा। वंस द टास्क इज कंप्लीटेड हम उसको कंप्लीटेड मार्क कर देंगे। ओके, और अगर हमें ये भी करना है कि जैसे एक नया टास्क सिस्टम में क्रिएट हो रहा है किसी कस्टमर के रिलेटेड, तो उसको एक ईमेल या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चला जाए कि योर पर्टिकुलर क्वेरी हैज बीन रजिस्टर्ड, so and so is your task number, okay, and this RM is working on it। तो अगर मुझे ऐसे नोटिफिकेशंस भी कस्टमर को भेजने हैं तो वो भी हम CRM के थ्रू भेज सकते हैं। ओके, मतलब मैंने जो भी इंटीग्रेट किया होगा ईमेल या व्हाट्सएप, उसके हिसाब से मैं मैसेज जो है नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ। फिर टास्क का सोर्स क्या है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफाइंड सोर्सेज है कि उसने मुझे कॉल किया, ईमेल किया। ओके, फिर उसका प्रायोरिटी, ओके, कि मतलब हाई मेरा कोई अर्जेंट टास्क है, कोई ऐसा टास्क है जो मीडियम प्रायोरिटी वाला है या लो प्रायोरिटी वाला। okay, मैं यहाँ से एक डेडलाइन भी सेव कर सकता हूँ, मतलब मुझे ऐसा टास्क है कि जो कल के कल कंप्लीट हो जाना चाहिए, आज के आज, तो मैंने यहाँ पे आज का डेट डाला, लेकिन किसी रीजंस की वजह से जो है ये मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया आज, तो फिर वो है ना ऑटोमेटिक मेरे ओवरड्यू में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, मेरे ओवरड्यू में, तो एज अ आरएम या एज अ टीम लीडर में पूछ सकता हूँ मेरे यूजर को कि भाई कौन से रीजन की वजह से जो आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। ओके, जैसे मैंने बोला था कि अगर मुझे किसी क्लाइंट के साथ इसको रिलेट करना है तो मैं इसको इजीली क्लाइंट के साथ रिलेट भी कर सकता हूँ। ओके, मेरे जिस भी आरएम को मुझे असाइन करना है तो आई जस्ट सिलेक्ट उसका यूजर नेम और मैं उसको सेव करूंगा, तो ये जो पर्टिकुलर टास्क है वो उसके डैशबोर्ड पे उसको असाइन हो जाएगा और उसे नोटिफिकेशन भी आएगा कि ये पर्टिकुलर टास्क जो है वो आपको असाइन हुआ है। ओके, सेम हमारे पास यहाँ पे भी कमेंट्स का सेक्शन है जहाँ पे मुझे जो भी डिटेल्स ऐड करनी है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी दिख जाएगी, मतलब ये लीड्स और टास्क कौन से दिखेंगे जो लिमेश सर के रिलेटेड थे। ओके, और अगर मैं ग्रुप लेवल पे जाऊँ तो मुझे दिखेगी कि ओवरऑल पारेख एंड फैमिली के थ्रू हमें कितनी लीड्स या टास्क आए थे। ओके, तो ये डिटेल्स हमें जो क्लाइंट लेवल पे देखनी है वो क्लाइंट लेवल पे देखेंगे और जो ग्रुप लेवल पे देखनी है वो ग्रुप लेवल पे भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिपोर्ट्स का सेक्शन। ओके, तो ये जो हमारा डेटा है या हम जो भी काम कर रहे हैं सिस्टम पे उसका मुझे रिपोर्टिंग भी चाहिए होगा मेरी टीम एनालिसिस के लिए। ओके, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट बिल्डर दे दिया है जिसमें कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स भी पहले से बने होंगे। ओके, या कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी होंगे जो अगर आपको बनाने हो तो आप अपने एंड से भी बना सकते हो या हमारी टीम भी उसमें आपकी हेल्प कर देगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक टास्क का रिपोर्ट ओपन किया, तो ये टास्क का रिपोर्ट मुझे क्या बता रहा है कि ओवरऑल ये मंथ में पहले तो मुझे कितने टास्क अलोकेट हुए, तो ये मुझे बता रहा है मेरी टीम को टोटल 608 टास्क अलोकेट हुए। अभी मुझे इसका बाइफरकेशन देखना है कि वो स्टेज वाइज कैसे है, मतलब कितने कंप्लीटेड है, कितने इन प्रोसेस है या कितने नए हैं अभी तक।
ओके तो आगे मुझे उसका डिटेल बाइफर्केशन भी बताएगा। वो मुझे बता रहा है 17 टास्क ऐसे है जो कंप्लीट हो चुके हैं, ओके, इन प्रोसेस 35 है और ओपन 556 है। अभी मुझे देखना है वो कंप्लीटेड कौन से और वो कौन से आरएम ने मेरे कंप्लीट किए। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे आरएम वाइज पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो बता देगा। ओके ये हेम नायक ने कौन सा और ऐसी particular ही कुछ रिपोर्ट आपकी मीटिंग्स की भी हो जाएगी कि भाई आपने कितनी मीटिंग्स करी, कब कब करी, आपकी टीम ने कितनी करी। हाँ, ये हेम नायक ने कौन सा टास्क कंप्लीट किया। और ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप का हमारा फीचर है, मतलब अगर आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे रिपोर्ट को देखना हो तो हम अलग अलग पैरामीटर्स जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके फिर ये रिपोर्ट्स इजीली डाउनलोडेबल भी है, मतलब आपको इसको अगर पीडीएफ या एक्सेल में डाउनलोड करना है तो आप उसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। इसको शेड्यूल करके रखना हो, काफी मेरी ऐसी रिपोर्ट्स होती है जैसे सेल्स की रिपोर्ट हो गई, ओके, जो मुझे हर महीने देखनी होती है। सो आई कैन इजीली शेड्यूल दिस रिपोर्ट्स कि मैंने एक बार शेड्यूलर को बोल दिया कि मुझे हर महीने की फर्स्ट को ये मीटिंग मेरे ईमेल पे चाहिए, ओके, तो वो ऑटोमेटिक फिर उसके हिसाब से मुझे ईमेल पे मीटिंग्स जो है वो आती रहेगी। ओके मूविंग बैक टुवर्ड्स द डैशबोर्ड, ओके हम डैशबोर्ड की तरफ वापस जाते। तो ये डैशबोर्ड जो अभी मुझे दिख रहा है ना वो मेरा इंडिविजुअल डैशबोर्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि मुझे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। ये मुझे बता रहा है दो ड्यू टू डे में दो चीजें हैं। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे बताएगा कौन सी दो चीज है, तो वो बता रहे मुझे दो टास्क कंप्लीट करने। कौन से दो टास्क में वापस उस पर क्लिक करूंगा तो वो पूरे दो टास्क का जो भी डिटेल्स है वो मुझे यहाँ पे बता देगा कि टास्क का नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ओके, कौन से क्लाइंट के रिलेटेड है, जो भी मैंने डिटेल्स भरी होगी वो सारी चीजें मुझे वो यहाँ पे बता देगा। सेम थिंग ओवरड्यूज में वो मुझे बताएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिन पे मेरा फॉलोअप छूट चुका है। ओके तो ये बता रहे 83 टास्क मेरे इनकम्प्लीट है, 12 लीड्स है जिसके ऊपर मुझे फॉलोअप करना है, या दो ऐसी मीटिंग्स है जो मेरी शेड्यूल थी लेकिन मैंने कंप्लीट मार्क की नहीं की, या तो किसी रीजंस की वजह से वो मेरी मिस हो गई। ओके फिर वो मुझे बता रहा है कि 102 टास्क है जो मुझे असाइन है। ओके 71 कस्टमर्स है जो एज ए आरएम मुझे असाइन है, मतलब ऑर्ग में काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास 100 कस्टमर्स होते हैं, ओके, उसमें से फिर मैं आरएम वाइज सबको 2020, मेरे 5 आरएम होते हैं तो मैंने वो सबको 2020 अलोकेट करके रखे। तो एज ए इंडिविजुअल आरएम मुझे 71 कस्टमर जो है वो अलोकेट है। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे वो बाइफर्केशन बताएगा। ओके अगर मैंने जो भी बाइफर्केशन रखा होगा वो उसके हिसाब से मुझे आगे बताएगा। ओके उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि मेरे पास एज एन इंडिविजुअल 27 लीड्स है जिसके ऊपर मुझे फॉलो अप करके नया बिजनेस लाना है। ओके उसका वैल्यूएशन कितना है वो भी मुझे बता रहा है। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो पहले तो मुझे बताएगा फॉलो अप डेट, उसका बाइफर्केशन, ओके, फिर लीड सोर्स वाइज मुझे कितने लीड्स कौन से पर्टिकुलर सोर्स से आई है, ओके, जैसे सोशल मीडिया से एक आई है, वेबसाइट से 3 आई है, व्हाट्सएप से 12 लीड्स आई है, ओके, उसका स्टेटस क्या है, 24 ऐसी लीड्स है, ओके, जो अभी तक न्यू है जिसपे कुछ काम नहीं हुआ है, 3 ऐसी लीड्स है जो इन प्रोसेस है। लास्ट में वो मुझे प्रोडक्ट सेक्शन बताएगा कि इंश्योरेंस के लिए मेरे पास 15 लीड्स है, म्यूचुअल फंड के लिए मेरे पास 4 लीड्स है, और 20 लीड्स ऐसी है जिसमें अभी तक मुझे पता नहीं चला कि कस्टमर को किस चीज में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करवाना है। फिर वो बता रहे मेरी 21 जो ऐसी मीटिंग्स है जो शेड्यूल्ड है। तो ये तो मेरा एक इंडिविजुअल लेवल का डैशबोर्ड था। सेम अगर मुझे टीम लेवल का डैशबोर्ड देखना हो सो आई कैन जस्ट सिंपली सिलेक्ट माय टीम डैशबोर्ड। ओके सो एज अ एडमिन या एज अ टीम लीडर अभी मेरे अंडर जितने भी यूजर्स होंगे उन सबका काम मुझे एक जगह पे दिखेगा। तो अभी ये मुझे बता रहा है कि 83 लीड्स है टोटल मेरी टीम के पास। मैं क्लिक करूंगा तो जो बाइफर्केशन हमने पहला देखा था वो सेम दिखाएगा। लास्ट में वो एडिशनली मुझे ये भी बताएगा कि मेरे कौन से यूजर के पास कितनी लीड्स है। ओके तो वो बता रहे निर्भय पटेल के पास 6 है, साक्षी के पास 4 है, ऐसे यूजर वाइज वो मुझे बताएगा। उसके बाद हमारा पीरियोडिक का सेक्शन आता है। पीरियोडिक मतलब कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ओके, ये फिल्टर है जिसमें मुझे मंथली, वीकली, ईयरली, क्वार्टरली जो भी मुझे फिल्टर लेना है वो मैंने चूज किया। लेट्स सपोज मैंने मंथली सिलेक्ट किया तो वो मुझे बताएगा कि पिछले एक महीने के टाइम पीरियड में मुझे कितना काम जो है वो अलोकेट हुआ है। मतलब वो मुझे बता रहे पिछले एक महीने के टाइम पीरियड में मेरी टीम को 138 टास्क मिले, हमने 44 कॉल्स किए, ओके, हमारे साथ 11 नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड हुए, ओके, या नई 19 लीड्स हमारे सिस्टम में आई, या हमने 15 मीटिंग शेड्यूल की। ये तो डेटा होगा कि कितनी चीजें हमारे पास आई, उसमें से हमने एग्जीक्यूट कितनी की, कितना रिजल्ट मुझे मिला। तो सेम मैं वहां से वापस फिल्टर चूज कर लूंगा।
मैंने वापस यहाँ पे मंथ का फिल्टर चूज किया। ओके, तो अभी वो मुझे बताएगा कि पिछले 1 महीने में पहले तो मैंने टास्क कितने कंप्लीट किए, कितनी लीड कन्वर्ट करके मैं नया बिजनेस लाया, कितनी मेरी अपॉर्चुनिटी है जो लॉस हो चुकी है, ओके, या कितनी मीटिंग जो है मैंने कंप्लीट कर दी है। तो ये पूरा डेटा जो है वो मुझे मेरे रिजल्ट पैनल में देखने को मिल जाएगा। सेम अगर मुझे किसी इंडिविजुअल का डैशबोर्ड देखना हो, ओके, मेरे किसी सिलेक्टेड यूजर का डैशबोर्ड, तो मैं सिंपली जो भी यूजर है उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और मैं उसका डैशबोर्ड देख सकता हूँ यहीं से, ओके। या मेरे पास मल्टीपल सेट्स ऑफ टीम है, जैसे मेरी रिसर्च की टीम अलग हो गई, मेरी सेल्स की टीम अलग हो गई, मेरी बैक ऑफिस की टीम अलग हो गई, तो मैं उनके अलग अलग कैटेगराइजेशन भी कर सकता हूँ, ओके, यूजर वाइज, और फिर उसके टीम का भी पूरा काम एक साथ देख सकता हूँ, ओके। इसमें मुझे अगर कुछ रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगवाने हो, मतलब कुछ परमिशंस, ओके, कि मेरा जो बैक ऑफिस का गाय है उसको पता ना चले, उसको कस्टमर रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स ना दिखे या कस्टमर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना दिखे पर्टिकुलर, तो वो हम कॉन्फ़िगर करके उसको हाइड कर सकते हैं, ओके, मतलब उसको हम विजिबिलिटी उतनी ही रख सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा गो थ्रू देता हूँ मेरे मोबाइल एप्लीकेशन का, ये हमारे वेब एप्लीकेशन का गो थ्रू था। निर्भय भाई, वन थिंग टू कवर मेरे ख्याल से करना चाहिए, एक बार प्लीज क्लाइंट का लिस्ट व्यू दिखाएंगे और कितनी आसानी से हम मास एक्शंस ले सकते हैं और फिल्टर्ड व्यू बनाकर रख सकते हैं, और उन फिल्टर व्यू को किस तरीके से जो एमएफडीज हैं वो यूज करके अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन को हेल्दी कर सकते हैं। परफेक्ट, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट का सेक्शन है जिसमें वो मुझे बताया कि ओवरऑल हमारे पास कितने कस्टमर है, ओके। तो ये मुझे बता रहे मेरे पास असाइन है 1188 क्लाइंट्स, ओके। तो इसमें मुझे कोई भी बाइफर्गेशन देखना हो या कोई पर्टिकुलर फिल्टर देखना हो, ओके, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई सिटी रखी है, ओके, अभी मुझे ये पूरे डेटाबेस में देखना है कि मेरे पास मुंबई के कितने कस्टमर्स है, तो मैं सिंपली आप कहीं जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट है, आप एक टूर मारना चाहते हैं, आप अपने कस्टमर्स को वहां पर उस पर्टिकुलर लोकेशन एरिया में मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। तो दिस इज वन, एंड यू कैन आल्सो सेव दीज व्यूज, कि भाई आपने एक बार सर्च कर लिया तो आपने वहां पर मुंबई क्लाइंट्स करके सेव भी कर लिया, कल को आपने बिल्कुल सिलेक्ट करके मुंबई क्लाइंट्स पे गए, आपने आपने मुंबई क्लाइंट्स का डेटा अपने आप अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे नए क्लाइंट्स आते रहेंगे जिसमें सिटी मुंबई है वो अपडेट हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से। कैन यू ओपन द फिल्टर प्लीज, कैन यू ओपन द फिल्टर, ग्रेट। तो यहाँ पर क्लाइंट के अंदर जस्ट ओपन द सिटी वाला ड्रॉप डाउन, या सो इमेजिन इफ यू कुड फिल्टर आउट बेस्ड ऑन अ टोटल इन्वेस्टमेंट, कि 1 करोड़ से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाले कितने क्लाइंट्स, या 50 लाख से 1 करोड़ वाले कितने क्लाइंट्स हैं, ठीक है। या आपको किसी डेट ऑफ बर्थ से आपको फिल्टर करना है कि भाई डेट ऑफ बर्थ रेंजेस बिटवीन लेट्स से जून ऑफ 1980 टू दिसंबर ऑफ 1980, ठीक है, आपने ये एक रेंज ले लिया, तो आप उस व्यक्ति को लेट्स से एक रिटायरमेंट प्लान के ऊपर एक ईमेल भेजना चाह रहे हैं, तो इस फिल्टर का हेल्प ये है कि आप फिल्टर लगा के उन क्लाइंट्स को एक टैग कर सकते हैं, उस टैग वाले क्लाइंट को मास एक्शन कर सकते हैं, मतलब मास ईमेल भेजना है, मास व्हाट्सएप भेजना है अगर व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेटेड है, मास एसएमएस भेजना है अगर एसएमएस गेटवे इंटीग्रेटेड है, तो कम्युनिकेशन आपकी जो है बहुत परफेक्ट हो जाती है। यहीं पे आपका जो क्लाइंट है वो मिस होता है, क्योंकि टाइम होता नहीं है, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, एक्सेल शीट यहाँ पे भी बनाई हुई है, वहां पे भी बनाई हुई है, कहाँ क्या फिल्टर लगेगा, तो फिल्टर जो है सेव करके रखिए और बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रखिए, ठीक है। कैन यू क्लियर दिस, कैन यू क्लोज दिस विंडो? Now there are a lot of fields that you see here, like the client code, like maybe the family code, which you don't need. These can be removed from the view also. और एक बारी का काम है ये, ठीक है। ये हम आपको ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज, हम आपको वो करके देंगे, ठीक है।
Thank you, Nirbhay. Can you move forward? परफेक्ट, यस सर। तो हरकिरत सर ने वो क्लाइंट वाला जो है पूरा कवर कर लिया कि मतलब हम कौन से फिल्टर्स लगा सकते हैं, ओके, और कौन से एडिशनली चीजें कर सकते हैं, ओके। अगर मुझे इन पूरे क्लाइंट्स पे कुछ कमेंट्स भी ऐड करने हो एक साथ, मैं मुंबई जा रहा हूँ विजिट करने, ओके, सो मैं मास कमेंट भी कर सकता हूँ यहाँ से। मैंने जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, वो जितने 11 थे वो सारे सिलेक्ट हो गए, मैंने यहाँ से कमेंट सिलेक्ट कर लिया, ओके, और फिर मुझे जो भी डेटा डालना है मैं वो कमेंट अपडेट कर सकता हूँ मास में सारे क्लाइंट्स के ऊपर एक साथ। मास एक्शन में यूजुअल जो इस्तेमाल होता है वो क्या क्या होता है? जैसे कि आपने डीएक्टिवेट करना है क्लाइंट को, या आपको एक सेट ऑफ क्लाइंट्स बिल्कुल डू नॉट कॉल करने हैं, या आपको एक सेट ऑफ क्लाइंट्स का टैग लगाना है, लेट्स से रिटायरमेंट प्लान, या अभी वॉर का टाइम है। बड़ा अच्छा एमडोआ में सर, बिलीव यू मी, आई रियली एंजॉयड द सेशन, और कई सारे इनपुट्स वहां से मिले। जैसे कि आपका एक जियो पॉलिटिकल का एक सेशन था। अब जियो पॉलिटिकल का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने सीखा कि भाई कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रियल इस्तेमाल तब होगा जब आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाकर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर को भेजें। सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा, उस नॉलेज को इस्तेमाल करना है, उस नॉलेज के हिसाब से अपना कंटेंट बनाना है, सोशल पे कंटेंट बनाना है, ईमेल पर कंटेंट बनाना है, व्हाट्सएप पर कंटेंट बनाना है और भेजना है। एंड इट विल टेक मनी, इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इन्वेस्टमेंट विल गिव यू रिजल्ट्स। कुछ चीज, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री इन द वर्ल्ड, everything you have to pay, and one of the payment that you have to do is your time payment. You have to invest that time into creating that model, that creating that client uh, data in a manner that you can use it the best. ठीक है? Yeah, please carry. Perfect. So now I'll share my mobile application screen. Okay, how easily आप कोई भी चीज मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। लीड मैनेजमेंट हो गया, या कोई पर्टिकुलर टास्क आपको देखना हो, या आपको टीम को मॉनिटर करना हो खाली कि उनके पास कितना काम है। Just give me a minute. Harkirat sir, is my screen visible? Not No, here. bhai. No, no, no. Hello, hello. Just give me a minute. I'm connecting through mobile.
ओके ओके, तो ये है ना, यहाँ पे आपको अब जो स्क्रीन विजिबल है ना, वो मेरे एक मोबाइल एप्लीकेशन का स्क्रीन है। ओके, तो गो थ्रू मतलब हमने जो भी चीजें वेब पे देखी, जैसे हमने वेब डैशबोर्ड वेब पे देखा, वो सेम हम मोबाइल पे भी देख सकते हैं। अभी वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि लेट सपोज मैं किसी लीड को मिलने गया ऑन साइट। ओके, मैं यहाँ पे ड्यू टू डे में गया, कोई भी पर्टिकुलर एक लीड या टास्क मैंने ओपन किया जो मैं ऑन साइट कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में एक चेक इन का ऑप्शन है। ओके, तो मैं चेक इन पे क्लिक करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मेरा लोकेशन ले लेगा कि मैं कस्टमर को मिलने कहाँ पे गया हूँ। ओके, मेरा करंट एड्रेस उसने ले लिया, मैंने यहाँ पे चेक इन कर लिया। उसके बाद जैसे ही मैं चेक इन करूंगा, एक बार मेरा चेक इन हो गया, उसके बाद वो ऑटोमेटिक टाइम कैलकुलेशन चालू कर देगा कि कितने टाइम से मेरी मीटिंग चालू है। ओके, वंस आई चेक आउट, ओके, वो कुछ ऑप्शंस देगा मुझे। पहले तो क्या, मुझे ये टास्क कंप्लीट कर देना है। ओके, कुछ कमेंट्स मुझे ऐड करने हैं। ओके, तो वो कमेंट्स में ऐड कर सकता हूँ, या जैसे मैंने बताया कोई डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना है या मुझे कस्टमर की सिग्नेचर लेनी है, तो सारी फैसिलिटी हमारे में अवेलेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे सिग्नेचर किया, तो मेरा सिग्नेचर ले लेगा, और फिर मैं इसको कैमरा से सेव डायरी के नोट्स ले लिए। इसको मैं सेव कर दूंगा, तो वो वापस मेरा लोकेशन मांगेगा कि मैंने कहाँ से जो है ये मीटिंग को कंप्लीट किया है। मैं वापस चेकआउट करूंगा, तो वो ऑटोमेटिक अभी मेरा क्या, ये पर्टिकुलर काम के ऊपर मेरा कितना टाइम गया, मेरी कितने टाइम की मीटिंग थी। ओके, वो सारी चीजें वो कैलकुलेट कर लेगा। और फ्यूचर रेफरेंस के लिए मुझे अगर चाहिए, सो मैं सिंपली वो टास्क या लीड को ओपन करके जो भी बातचीत हुई थी वो मैं पढ़ सकता हूँ, या मैंने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किया था वो भी हम सिंपली देख सकते हैं। सो ये हम एक चेक इन चेकआउट वाला फीचर कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ बेसिक एचआर फीचर है। ओके, जैसे क्लॉक इन क्लॉक आउट का, अटेंडेंस मार्किंग का, या लीव मैनेजमेंट का। ओके, तो ये भी हमारे पास कुछ एचआर फीचर्स है जो कि हम मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं। और जैसा हरकिरत सर बता रहे थे कि अगर मैं लीड मोबाइल एप्लीकेशन से बता रहा हूँ और मेरे कॉन्टैक्ट में कोई डिटेल्स अवेलेबल है, तो मैं सिंपली वो डिटेल्स पुल आउट कर सकता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में से। ओके, अभी मैं आपको मेरा एक चैटबॉट बता देता हूँ। ओके, कि मैं जैसे बता रहा था कि मैं कोई लीड या कोई टास्क जो है वो सीधा मेरे चैटबॉट से सीआरएम में ला सकता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मुझे कोई ट्रिगर सेट करना होगा। जैसे हमारा चैटबॉट हमने इस पे रखा है कि ट्रिगर रखा है हाई संचय, तो मैं जैसे ही हाई संचय भेजूंगा उस पर, तो मेरा चैटबॉट जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। अभी हमने अभी के लिए 3 स्टैंडर्ड ऑप्शंस रखे, मतलब एक सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अभी मैंने उसको प्रीवियसली सिलेक्ट किया था कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसने मुझे पूछा ओके लेट्स प्लान योर इन्वेस्टमेंट टुगेदर, गेट अ कॉल बैक। तो मैं जैसे ही गेट अ कॉल बैक पे क्लिक करूंगा, तो ये यहाँ पे मुझे एक फॉर्म फिलअप करने बोलेगा। ओके, ये मेरे लीड के लिए फॉर्म है, मेरा जो भी नाम है वो मैं यहाँ पे भर दूंगा। ओके, मेरा क्या मोबाइल नंबर है, ओके, ईमेल एड्रेस, ओके, मैं कौन से प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मुझे किन चीजों में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, ये हमने एक आधार का भी ऑप्शन दिया है। ओके, मल्टी सिलेक्ट भी है, मतलब मुझे दोनों में इन्वेस्ट करना, मैं दोनों सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, मंथली मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ओके, तो वो भी मैं पर्टिकुलर यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब मैं जैसे ही सबमिट डिटेल्स करूंगा, तो ये जो है वो ऑटोमेटिक इसका एक लीड है मेरे सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा, और मैं जिस भी आरएम को मैंने असाइन किया होगा कि ये लीड उसको असाइन हो जाना चाहिए, वो उसको ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। ओके, और अगर हमें और कुछ एडिशनल चीजें बॉट में भी करवानी हो, तो वो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं चैटबॉट में। So Nirbhay, I wish to add another thing. What we can do here is the risk assessment questionnaire can be created in the form of a यस, flow, and we can capture राइट, that on the client. राइट, तो आपकी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं
10, 12, 15 क्वेश्चन रहते हैं वो हम कैप्चर करके क्लाइंट के ऊपर पोस्ट कर सकते Yes, हैं. I yes, hope that is interesting. definitely, sir. Everybody finds that interesting. Maybe you can give me a yes or a no on the chat. Is everyone there? Then I hope no one went to sleep. Sanjay No, ji, sir. are you there? Okay. Is everyone there? Yes. I got one yes. Jay Prakash ji is full charged up. I think you can add a little bit of more engagement in the session. Who liked the approach कि भाई एक रिस्क असेसमेंट जो है उसके क्वेश्चनर को हम अगर चैट फ्लो में मैप कर दें और उसको क्लाइंट पे अपने आप ले आए और उसके बेसिस पे यू डू योर रिसर्च बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर गुड एट. ठीक है, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका डिफरेंशिएटर क्या है? जिस तरीके से वो फंड सिलेक्ट करके अपनी बास्केट बनाता है, जिस तरीके से वो फंड्स को अपने क्लाइंट्स को प्रपोज करता है, राइट? और आपका आपके क्लाइंट की अगर फैमिली है, उसके अंदर फैमिली में जैसे एक पॉइंट कवर हुआ था बड़ा अच्छा कि जो आपका लॉक इन है, मेरे ख्याल से जसकीरत जी ने बताया था, बड़ा अच्छा पॉइंट बताया था कि आप लॉक इन वाले फंड जरूर दीजिए. अब आपने क्या उसको फंड दिया, क्या नहीं दिया, क्या पिच किया, क्या नहीं किया, उसकी मैनेजमेंट कहाँ करोगे? उसकी मैनेजमेंट यहाँ करोगे. This is the CRM where you will manage that. Otherwise, you will have no control. And again, I will ask any of you to tell me, will you have any control without having a CRM? Yes or no? Will you have any control without having a CRM in place? I don't think so, but I could be wrong. I will like your suggestions in the comments, please. हरकिरत सर, हेलो, Yeah. सॉरी टू इंटरप्ट यू Yeah. सर. तो अपन Yeah. Q&A स्टार्ट कर सकते हैं क्या? मतलब सब लोग अपने बिल्कुल जो बिल्कुल भी उनका Q&A बात start है कर वो सकते रख सकते हैं. तो सभी लोग बिल्कुल अपने बिल्कुल अनम्यूट होके ना जो भी अपना अपना क्वेश्चन है बेझिझक पूछ सकते हैं. निर्भय है और हरकिरत सर है, ये दोनों आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर्स है वो देंगे. तो ओवर टू यू एवरीवन. Hi, this is Ritu here. Yeah. So if you can explain that how our underlying systems will interact, like काफी लोगों ने पूछा है. So will these be integrated with some of the known systems or how it will be? So what the question is, what do you use right now? So I use H360 and so basically RTA system I use, KFinTech, DIT, Okay. that distributor app and that H360 for camps. ओके कैम्प्स का डेटा के लिए आप वो यूज करते हैं. सो उसके अंदर ना एक ऑप्शन होता है, सारे सिस्टम्स के अंदर एक ऑप्शन होता है टू एक्सपोर्ट ऑल क्लाइंट पोर्टफोलियो. ओके, हर सिस्टम में एक बटन होता है जिसको बोलते हैं ऑल क्लाइंट पोर्टफोलियो एक्सपोर्ट. Okay. इफ यू एक्सपोर्ट दैट and give us the template during the implementation, what we will do is we will map those columns to our fields once, और उस सेटिंग को हम सेव कर देंगे ताकि आप जब मॉर्निंग में एक बार एक्सपोर्ट करें ऋतु जी अपने H360 से, और जब सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करें तो विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन आपका इजीली इंपोर्ट हो जाए और क्लाइंट रिकॉर्ड्स उस क्लाइंट के ऊपर अपडेट हो जाए. अब उसमें दो चीजें होंगी, एक तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का डेटा अपडेट हो जाएगा और एक जो नया क्लाइंट ऐड ऑन हुआ है, क्योंकि यूजुअली 3 दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन लगते हैं किसी भी लेट्स से SIP है या लमसम है, किसी को ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए. तो जब वो नया ट्रांजैक्शन आया नया क्लाइंट के लिए, तो फॉर दैट क्लाइंट द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट्स. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऋतु जी. Yeah, it takes time. Yeah. राइट. सो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है आपका नया क्लाइंट अपने आप बनेगा बिकॉज इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट से अपने आप क्लाइंट बन जाएगा.
और नया क्लाइंट आपको दिखाई देगा अलग से कि भाई न्यू क्लाइंट क्रिएटेड, ठीक है। तो वहां पे आप देन यू कैन क्रिएट अ टास्क फॉर ऑनबोर्डिंग एंड देन यू कैन स्टार्ट द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, केवाईसी लो, सब कुछ लो, मतलब जो जो भी चीजें, नॉमिनी ऐड कराना है या व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, that will be done. I hope that answers your question. Somewhat. So basically, but ultimately, all the things I need. So it will be a daily. I need because transactions would be Daily happening over once the import. daily Once once daily import. import. Yeah, Yeah. morning में once daily import. और ये रीजन इंपोर्ट का इसीलिए नहीं है कि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। रीजन इंपोर्ट इसका ये है कि जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे इन्वेस्टवेल है, रेड विजन है, कई सारे और एप्लीकेशंस हैं, आई एम श्योर सेम क्वेश्चन और भी लोगों का होगा, ये लोग अभी एपीआई नहीं दे रहे। Mm-hmm. अब जब तक एपीआई नहीं आएगा तो मैं इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में कैसे ले लूंगा डायरेक्ट। Yeah. हमने एडवाइजर खोज की इंटीग्रेशन कर दी, Mm-hmm. तो जैसे जैसे हमें एपीआई मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम इंटीग्रेशन करते जाएंगे। Okay. आई होप नाउ दैट एड्रेसेस योर क्वेश्चन। Yeah. Thank you. या ग्रेट। एनीबॉडी एल्स? इसकी प्राइस क्या होगी? हाँ जी, मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ मेरठ से। इसकी प्राइस क्या होगी? प्राइस प्राइस क्या होगी वो सर आप मेरे से डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे अच्छा एक एस्टिमेट प्राइस हम आपको दे देंगे, कॉल करके हम आपको देंगे एस्टिमेटेड प्राइस। अच्छा, अभी मैं भी वेबसाइट यूज करता हूँ, हाँ जी, तो जैसे आपने बताया अभी एपीआई नहीं है, तो जब तक एपीआई नहीं है तो ये डेली इसमें डाटा इंपोर्ट करना होगा। हाँ जी, डेली क्या? डेली जो डाटा सर, इसका आपके जय इसका सर। इंपोर्ट। हेलो सर, वेबसाइट के मामले में ना आपको डेली डेटा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आपका वेबसाइट हम लोग है ना डायरेक्ट एपीआई इंटीग्रेशन करके यहाँ पे वन टाइम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जो भी डेटा पुल इन पुल आउट करना है वो सीआरएम खुद ही कर लेगा। अभी हम लोग के पास इन्वेस्टवेल, रेड विजन, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म का एपीआई उनके कंपनीज ने नहीं दिया हुआ, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं है। वंस दे आर रेडी टू गिव अस द एपीआई, वी आर रेडी टू डू द इंटीग्रेशन। तो ये जो इंपोर्ट वाला फैसिलिटी है उस पर भी हमको रिलाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। वेबसाइट आराम से इंटीग्रेट हो सकता है, आप बस मेरे को एपीआई दे दीजिएगा, हम लोग करके दे देंगे आपको। और मैं ऐसी कंपनी जो है ना जय सर, कुछ ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो कि एपीआई नहीं देना चाहते और नहीं देंगे। सूनर और लेटर दे विल रियलाइज व्हाट दे आर मिसिंग आउट ऑन एंड दे विल हैव टू गिव। एपीआई ना देना एक आई थिंक इट्स अ कंपनी एटीट्यूड। फिंसिस का एपीआई मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा सर, सबका मिलेगा, धीरे धीरे सबको सबका मिलेगा। नहीं, अभी वो तो बात की बात है, हम लेकिन लोग है फिलहाल ना सर, अभी फिंसिस का भी मिल सकता है क्या? जैसे अभी हाँ, मैं फिंसिस का फिंसिस यूज हमारा करता इन प्रोसेस अभी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो जो फिंसिस के ओनर है अभिनेश सर, ठीक है, वो हूँ। हमारे साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। और ओके बाय द एंड ऑफ मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ हम लोग का एपीआई इंटीग्रेशन उनके साथ भी डन एंड लॉक्ड हो जाएगा। एडवाइजरी खोज का हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और आपका अगर कोई वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट तो सर बिना कोई भी एपीआई दे दोगे वेबसाइट का, जो भी आपका वेब डेवलपर होगा वो आपको एपीआई दे देगा, उसके थ्रू हम लोग कर देंगे, वेब हुक के थ्रू। ओके या सर, थैंक यू। क्या मेरा नंबर नोट कर लो? एक मेरा नंबर है 9837346009। तो प्राइस के बारे में एक बार डिस्कस कर सर एक लेंगे। बार चैट में डाल देंगे तो निर्भय या हरकिरत सर दोनों में से एक जन आपको कनेक्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। एनी अदर वन? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा और बेटर रहेगा अगर अपन अभी डिस्कस कर ले तो चीजों को। सो शुड वी कंडक्ट द मीटिंग, कंक्लूड द मीटिंग? हेलो हेलो
Yeah, I will request everyone to avoid sharing your number on the chat. I have given my number. अगर आपको प्राइसिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मेरे को एक मिस कॉल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। जयप्रकाश जी, हम लोग बात करते हैं मीटिंग के बाद पक्का। Anyone else for any questions, please? मतलब इतना अच्छा सोल्यूशन बनाया है, किसी का सवाल ही नहीं है। क्या बात है। इसमें So सर दो ही please चीज हो ask सकता है, your या तो सब questions. कुछ समझ में आ गया या तो कुछ नहीं समझ में आया। So happy to address any questions at all. सुरेश जी, मीटिंग के बाद आपको आप मेरे नंबर पे प्लीज मिस कॉल कर दीजिए, आपको कॉल आ जाएगा। ये मेरा नंबर है 9818857875। Okay, so anything, anybody needs help on pricing or assistance or guidance, happy to help. और एमडुआ की एसोसिएशन मुझे बहुत पसंद आई, मैं दोबारा कहूँगा। और किसी भी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, कोई आपको ट्रेनिंग चाहिए या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, बिकॉज आई वांट यू टू, ऑल ऑफ यू टू सक्सीड एज एंड इंक्रीज योर AUM। अब टेक्नोलॉजी से वो कैसे हो सकता है वो आप मेरे से जान सकते हैं। मैं लोकल हूँ दिल्ली में, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और अपनी टीम को भी कॉल कर सकते हैं। आपके पास अब काफी सारे नंबर्स हैं, एनजे टीम का भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, तो यू कैन रीच आउट टू एनीवन, फील फ्री टू रीच आउट टू एनीवन एंड विल बी मोर देन हैप्पी। डेटा सिक्योरिटी, ग्रेट क्वेश्चन। मैं सोच रहा था अभी तक क्यों नहीं आया क्वेश्चन। सो everyone, we are GDPR compliant. We have a lot of ISO certifications we will share with you. Okay, rather so we'll share with you. आप जब मेरे को मिस कॉल करेंगे मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि कैसे हम सिक्योरिटी अडेरेंस करते हैं। we also do our VAPT टेस्टिंग। अच्छे एप्लीकेशंस VAPT असेसमेंट नहीं कर पाते। VAPT होता क्या है? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। छोटी सॉफ्टवेयर कंपनीज ये VAPT असेसमेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाती। GDPR कंप्लायंस एक ऐसा कंप्लायंस है जो कि EU में तो चलता है, अभी इंडिया में भी लोग बोल रहे हैं कि हमें चाहिए, तो वो भी अचीव करना हर किसी की बस की बात नहीं है, और वो सुपर इंपॉर्टेंट है। एक और एडिशनल डेटा सिक्योरिटी हमारी है जो इसको बोलते हैं 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जैसे कि बैंक्स में इस्तेमाल होता है कि ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर पहले कोड आएगा, तो पासवर्ड डालोगे, फिर कोड डालोगे, फिर एंट्री होगी। सो फॉर ऑल आवर लॉगिन्स 2FA इज मैंडेटरी। आपको 2FA के साथ ही लॉगिन करना होगा, आपको भी और आपके रिसोर्सेज को भी। वन नेक्स्ट लेवल ऑफ डेटा सिक्योरिटी, राजकुमार जी, अगेन थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, इज कि आप हैं और आपके टीम के मेंबर्स हैं। आप हर चीज अपनी टीम को नहीं दिखाना चाहते, तो वो हम लिमिट कर सकते हैं सिक्योरिटी फील्ड लेवल पे भी और प्रोफाइल लेवल पे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, राजकुमार जी। एनी आई होप दैट एड्रेसेस योर क्वेश्चन। राज जी, और ये चीजें जरूर पूछिएगा, अगर आपके पास कोई CRM सोल्यूशन लेके आता है तो ये चीज जरूर पूछिएगा कि मेरा डेटा कितना सिक्योर है। जो मैंने चीजें बताई हैं उनसे पूछिएगा कि क्या ये होता है, क्या ये नहीं होता है। Any other questions, please? Rajkumar ji, any other questions? In there any app where client show all his information? Divyanshi ji, are you there? Still there? Yes. Can you unmute yourself? Yes, you're there. Great. So देखिए, एक क्लाइंट को यूजुअली क्या देखना चाहिए, उसका खुद का पोर्टफोलियो देखना चाहिए।
क्या वो पोर्टफोलियो हमारे सिस्टम से जनरेट हो रहा है? नहीं, वो पोर्टफोलियो कैम से जनरेट होकर पहुंच रहा है S360 में या इन्वेस्टवेल में या एडवाइजर खोज में। तो उन एप्लीकेशंस को बनता है कि वो क्लाइंट फेसिंग एक मोबाइल ऐप बनाएं और लोगों को इंफॉर्मेशन, आपके क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन दिखाएं। आप अगर उन लोगों से बात करेंगे कि मेरे को एक वाइट लेबल ऐप चाहिए कि मेरे मेरे क्लाइंट मेरे को मेरे ब्रांड में ब्रांड की तरफ से क्लाइंट को पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन दिखानी है, दे विल चार्ज यू समथिंग बट इट विल बी पॉसिबल। तो जरूर आप उनसे बात करिए और ये यूजुअली पॉसिबल होता है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द CRM, this is a part of the portfolio management system, PMS. I hope that addresses your question, Divanshi. Great. Anyone else? Any other questions? I've already created a discussion. अनुराग जी, आपसे बहुत कुछ सीखना है मेरे को, कैसे आप कर रहे हैं। एंड एक और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा अपनी बात, आफ्टर विच वी विल ट्राई टू क्लोज द सेशन, कि हमने जितना भी ये संचय बनाया है ना, ये आप लोगों से सीख के बनाया। जब तक आप हमें नहीं बताओ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हम सीखेंगे कैसे? ठीक है, तो ये पूरा गाइडेंस से बना हुआ। निर्भय, एम आई राइट? डेफिनेटली राइट सर। तो पूरा गाइडेंस से बना हुआ है। और अगर आप कोई ऐसी चीज प्रपोज करते हैं जिससे कि एट लार्ज हमें एक एसोसिएशन पे पूरी एसोसिएशन को बेनिफिट मिलेगा, तो वो हम जरूर इम्प्लीमेंट करें, वो हमारी कमिटमेंट है। अग्रीड अग्रीड है। एनी क्वेश्चंस, एनीबडी एल्स? ओके, यहाँ पर अब मैं नाम लेने शुरू कर दूंगा, ठीक है? ओके, हु ऑल डू वी हैव हियर? आकाश जी, अमन जी, अनिमेश, अनूप, अनुराग जी, धनेश जी, दीपेन जी, लॉट टू लर्न फ्रॉम यू टू। आई वांट टू मीट यू इन पर्सन, जल्दी मिलते हैं। दिशांत गोयल, दिव्यांशी सिंह just address the questions। जयदीप जी, आपके भी आई होप क्वेश्चंस एड्रेस हो गए हों। पल्ला जी, पल्ला नरसिम्लू, ओके। सो एनी क्वेश्चंस, एनीवन? यहाँ पर Hi, क्या sir. बोलते हैं? या प्लीज। Sir, actually, I joined late, so really sorry for that. नो प्रॉब्लम, टेल मी योर क्वेश्चन प्लीज। I want to understand, are you only providing the CRM solution, or are you also working on the front end and front end of the software? हम लोग सर CRM के मास्टर हैं और 2009 से मास्टर है। अपने सामने CRM वाला नहीं टिक सकता कोई। मेरा अगर पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो 2000 से 2020 तक मैं सेल्सफोर्स के साथ था। सो वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग CRM सिस्टम। और जो चीज जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसको वहां पर फोकस करना चाहिए। अब अगर म्यूचुअल फंड में फोकस करते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ स्टॉक भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, FD भी कर रहे हैं, डिजिटल गोल्ड भी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट कर रहे हैं, और आपका फोकस कहीं नहीं है, तो आपका वहां का AUM बढ़ेगा ही नहीं जहां पे फोकस नहीं है। एम आई राइट, अनुराग जी? True, sir, true. So I want तो to हमारा understand फोकस जो है if, फुल yeah. ऑन CRM के ऊपर है। CRM पे आप कोई चीज बताओ जो हम ना कर पाए। So this complete CRM is cloud-based. कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड, मोबाइल ऐप इसके साथ मिलता है, वेब बेस्ड भी है, मोबाइल ऐप भी इसके साथ मिलता है, ठीक है? Okay. और And what if I want to just use the CRM and I want to have my own web application and Android application or iOS application? Will that be possible through API? सर देखो, आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जो है
उसके अंदर डेटा क्या दिखाना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको एपीआई मेरे से चाहिए मैं दे दूंगा, बट आपसे इंडिविजुअली जब बात करेंगे तो आपका यूज केस समझेंगे कि भाई आप करना क्या चाहते हो। तो वो आपके जो करना क्या चाहते हो वो आपके लिए अलग है, जयदीप जी के लिए अलग है, रुचिका जी के लिए अलग है। ठीक है ना? सो we'll definitely discuss in person, no problem. तो एज ऑफ नाउ जो आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इज इट स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन और आर यू कस्टमाइजिंग इट एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल आईएफए? सर कस्टमाइजेशन हर लेवल पे पॉसिबल होती है, और ये Okay. बहुत एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है कस्टमाइजेशन। ठीक है ना? तो क्योंकि हमने ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बनाया है, तो हमने ट्राई किया जितने भी नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं, जितने भी यूज केसेस हैं, वो यहाँ पे सारे कवर हो जाए। हाँ, आपकी बात ये सही है, अगर कोई कवर नहीं होता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं आपका जो चेंज है। बट अगेन अनुराग जी सेपरेटली बात करेंगे, पर्सन टू पर्सन बात करेंगे, तो ज्यादा अच्छे से आपका बिजनेस भी समझ पाएंगे और आपके माइंड में क्या चल रहा है वो भी समझ पाएंगे। ठीक है? गॉट इट सर, गॉट इट। ओके ओके। एनीवन एल्स? रितु जी, रुचिका जी, समीर, सुरेश जी, श्वेता जी फ्रॉम माय टीम, विनय जी, विवेक जी। Yeah, think my question was also regarding customization only. So Yeah. I'll connect one to one, then I'll post those हाँ जी, questions. पक्का पक्का, हैप्पी टू हेल्प। Sure. Thank you. Yeah. All right. Nirbhay ji, I think we can. Do you have to say anything? You want to close the session? Yes, sir. I would just like to thank everybody. आपने आपका कीमती समय निकाला और हमारा प्रेजेंटेशन देखने आए। बस Thank you so much, everyone. Thank you That so were much, my words. everybody. Have a wonderful day. Pleasure, sir. Pleasure is Thank all you. ours. Thank you. Bye bye. Thank you.